नेक्स्ट केस इज कन्वेक्शन विद हीट जनरेशन एंड ऑफ कोर्स कंडक्शन इज देयर. ठीक है, तो प्लेन वॉल लेते हैं, देखते हैं व्हाट हैपेंस इन प्लेन वॉल. सो व्हेन यू हैव कंडक्शन इन combination with convection, because we are dealing with those cases where both conduction and convection are taking place, right? But suppose that heat generation is also taking place within the body, and just like before, uniform rate of heat generation, right? Yes, QG जो बातें करी थी जिसके लिए मैं प्रोफाइल आपको एक बार बता चुका हूँ, right? So uniform रेट, इन पे क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे और थोड़ी सी गलती होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ हीट जनरेशन, ओके, यूनिफॉर्म वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ हीट जनरेशन, दैट वाज QG. तो ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सपोज दिस मीडियम विच इज मीडियम 1 इज हैविंग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H1 and it is present at a temperature T infinity 1, correct? This is again the same medium. If it is same medium, then we assume that the heat transfer coefficient is again same here, and then it is having heat transfer coefficient of H1, correct? And then we have the same temperature also, T infinity 1. मतलब मीडियम का टेम्परेचर सेम रखा है. अच्छा देखो, कई बार ऐसा होता है कि अगर सेम मीडियम है बट इट इज प्रेजेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, स्टिल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट्स विल बी डिफरेंट, है ना. तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करते, इट डिपेंड्स अपॉन देयर वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, देयर ओरिएंटेशन, ज्योमेट्री, फ्लो पैटर्न. देयर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स व्हिच कैन अफेक्ट हीट ट्रांसफर, एज आई टोल्ड यू. ओके, सो सपोज बोथ द मीडियम्स आर प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर्स. ठीक है, ये भी T infinity 1 है, ये भी T infinity 1 है. हीट जनरेशन इज टेकिंग प्लेस. Suppose that this surface temperature is TS1, correct? अच्छा, I told you that there will be a symmetry, plane of symmetry here. ऐसा हमने बताया था ना, there will be plane of symmetry. And what will be the profile? What will be the profile? अच्छा, यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर बराबर होगा क्या? Yes or no? Yes, बराबर होगा, because I told you that symmetry will be there. ठीक है, अगर सिमेट्री होगी तो ये प्रोफाइल कैसा बनेगा? That at x is equal to 0, the temperature will be Tmax. ये सारी बातें कर चुके हैं. Tmax माइनस TS, और इसको TS1 क्यों लिखना है, फिर इसको TS लिख दो, बिकॉज बोथ टेम्परेचर्स विल बी सेम. वाई बोथ टेम्परेचर विल बी सेम? देखो सीधी सी बात है, अगर मैं देयर इज अ सॉलिड बॉडी एंड इनसाइड मी देयर इज हीट जनरेशन टेकिंग प्लेस. इफ द कंडीशन ऑन माई राइट एंड कंडीशंस ऑन माई लेफ्ट आर आइडेंटिकल, देन देयर विल बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री. Along this line of symmetry, towards the right of this line of symmetry and towards the left of this line of symmetry, things will be just mirror images of each other. So the profile बनेगी वो ऐसी बनेगी. आपको पता है कि पैराबोलिक प्रोफाइल बनती है ना, तो ये पैराबोला है. पैराबोला नहीं भी लग रहा हो, आप इसको पैराबोला ही मानेंगे. ठीक है, दिस इज पैराबोला. ओके, व्हाट आफ्टर दिस? इसके बाद तो चीजें वैसी रहेंगी जैसे पहली थी. देयर विल बी मोर ड्रॉप इन द फिल्म एंड देयर विल बी लेस ड्रॉप आफ्टरवर्ड्स, right? More drop in the film, right? And there will be less drop afterwards. Of course, the temperatures, this is a completely symmetrical profile, right? So this is the temperature profile when uniform volumetric rate of heat generation is taking place inside a solid slab and the temperatures of the medium on the two sides are maintained constant. अगर ये temperatures same है, constant तो है, same है, equal to each other, then even these two will be same and the profile will be exactly symmetrical. Now the question arises that do you remember that what we have discussed about the Tmax minus Ts and T minus Ts, what was the equation? याद भी है? What was the equation? I think it was T minus Ts or Tmax minus Ts. Yeah, it was T minus Ts. Initially the profile, as far as I remember, it was T minus Ts is equal to QG square by 2K into 1 minus x square by L square. जहां तक मुझे याद आ रहा है ये एक्सप्रेशन था. If x is 0, then T is Tmax and you have this expression Tmax minus Ts is equal to QG square by 2K. QG L square. L square was there?
QG square was there, it was QG into L square. एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, डोंट वरी. आई टोल्ड यू कि आपको इसको याद रखने का आपके पास एक तरीका है ना. जस्ट कंसिडर एन इमेजिनरी सरफेस हियर एंड देन अप्लाई द फूरियर्स लॉ. हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट जनरेटेड, है ना. वहां से हमने करा था व्हाट विल बी द हीट जनरेटेड हियर, दैट इज द वॉल्यूम विल बी, दिस इज द यूनिफॉर्म volumetric rate of heat generation multiplied by volume. Volume कितना होगा यार, this will be area into x, that is E generated within this body. This is 0, this is x and this is L. या अगर आप पूरे का देख लो तो पूरा क्या हाफ जो वॉल्यूम है उसका A into L हो जाएगा. That is the volume must be equal to heat leaving, right? So that is minus K A dt by dx at x is equal to L. Now what was the value of dt by dx? Then we'll have to go into the temperature profile. आप वेरीफाई कर लेना, छोड़ो कोई बात नहीं, ये सेम रिजल्ट आएंगे आपके पास, है ना. मैंने आपको बता दिया था कैसे वेरीफाई करना है. Tmax minus Tx is equal to QGL square by 2K and T minus Ts is equal to QGL square by 2K. फिर मैंने इसका रेशियो भी लिया था, then it was 1 minus x square by L square. Fine. Now the question arises कि sir, can I write this equation in the form of some driving force divided by resistance? एक तो उसके बारे में बात करनी है. Secondly, one more thing. See, first of all, can I write this equation as, can we write just like the previous cases? I took the overall temperature difference. What is the, don't say T infinity 1 minus T infinity 1. भाई ये हीट ट्रांसफर ऐसे हो रहा है कि यहां से हीट निकल रही है और दोनों तरफ जा रही है, ठीक है ना. So can I write this as Tmax minus T infinity 1, the overall temperature difference divided by the resistances. What is the resistance here? 1 by H. H दोनों में सेम है तो H1 और 1 by H1 multiplied by A. A is same. What is the resistance here? ये L हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी K एंड L by K. ये गलत है, ठीक है, इसको लिख के काट लेना. Why this is not correct? Now this is a very very important point. If heat generation is taking place in a body, then we do not write that way, we do not use that way of writing. देखो ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लिखा ना L by Ka. आपको पता है L by Ka क्या था? L by Ka was the resistance for a solid wall, but in that case when there was no heat generation, you remember. But आपको पता है कि इस पोर्शन में हीट जनरेशन तो हो रही है. Can I write this? This is not possible. ये चीजें गलत हैं, ये नहीं लिख सकते, राइट? तो जब हीट जनरेशन हो रही है तो हीट जनरेशन वाले पार्ट को ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता. But what I can write, when heat generation is taking place, these two equations are applicable in the solids. Outside the solid there is no problem. In the solid, within the solid, these two equations are applicable. So ये दोनों जो applicable हैं, these are within the solid. This is very very important concept, that when heat generation is taking place, then within the solid, these are the equations. और इन equations से आप क्या calculate करोगे? Ts calculate करोगे या Tmax calculate करोगे. But outside the solid, in the medium, अगर आप outside the solid की बात करें, then yes, then this is applicable. But Tmax नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि Tmax जैसे ही आपने Tmax लिख दिया, now you are talking about inside the solid. Okay, so outside the solid, what you can write? Just like the previous cases, outside the solid, what is the temperature difference? Ts minus T infinity 1. So Ts minus T infinity 1, and then what is the resistance? 1 by H1A. ये कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है, ये करने में कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, हम लोग ये रट लेते हैं, और ये जो एक हमने कंबाइंड कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन का तरीका पढ़ा है वो हम यहाँ हीट जनरेशन वाले केस में भी अप्लाई कर देते हैं. ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ गलती कहाँ हो रही है? यहाँ गलती हो रही है. ओके, बिकॉज दिस L by Ka was the resistance of a solid slab is only applicable when there is no heat generation in the solid body. So when you are considering that part, आप जब उस पार्ट को कंसिडर करो जहां पे हीट जनरेशन हो रही है, यूज दीज सेट ऑफ इक्वेशंस व्हिच वी हैव डेवलप्ड बिफोर. आउटसाइड दैट, अच्छा, कैन यू राइट T infinity Ts, दिस विल बी हायर, राइट? या Ts minus T infinity 1 डिवाइडेड बाय सेम इक्वेशन हो जाएगी वो तो, बिकॉज टेम्परेचर्स आर सेम. सो आउटसाइड द सॉलिड यू कैन राइट दिस इक्वेशन. और क्या लिख सकते हैं? देखो क्या लिख सकते हैं. या एट स्टेडी स्टेट
ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बता रहा हूं, इससे क्वेश्चंस आपकी बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। एट स्टडी स्टेट हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम इन द बॉडी, हीट जनरेटेड पर, ये तो एनर्जी बैलेंस है, ई जनरेशन इज इक्वल टू ई आउट, सो पर यूनिट टाइम लिख रहा हूं, इन द बॉडी इज इक्वल टू हीट लीविंग बाय कन्वेक्शन, हीट लिविंग बाय कन्वेक्शन। आप बोलोगे सर इससे पहले तो आपने कंडक्शन लिया था, आप कन्वेक्शन के लिए हो रहा। बहुत इंपॉर्टेंट फंडा देखो, इफ यू आर कंसिडरिंग जस्ट दिस मच, दिस सर्फ, इफ यू आर जस्ट कंसिडरिंग दिस सरफेस and you are considering only this much of volume, fine, then of course you'll say कि इतने वॉल्यूम में जो हीट जनरेट हो रही है that is equal to the heat leaving by conduction here। अब यहां तो कन्वेक्शन नहीं हो रहा ना, but suppose if you are considering this entire half, then heat transfer is taking place here by what? By conduction, sorry, by convection, right? So I can say that heat flux at this heat generated per unit time in this body, इतने में जितनी भी हीट जनरेट होगी उसको बाहर जाना ही जाना है, क्योंकि वो बाहर नहीं गई then there will be unsteady state। आप अगर पूरे सिस्टम की हीट ले तो for the entire body if you take heat then you'll have to consider this heat also which is flowing in this direction। देखो कैसे लिखेंगे, so I can say that heat generated per unit time in the body, what is the volumetric rate of heat generation? Qg, fine। what is the volume of this right half? A into L, करेक्ट। तो इतनी हीट तो इसमें जनरेट हो रही है। अब इसको बाहर कैसे निकाल रहे हैं? कन्वेक्शन से। हाउ टू रिमूव बाय कन्वेक्शन? H1A, व्हाट इज दिस? Ts माइनस T इनफिनिटी 1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके पास एक आगे रिलेट करने के लिए, दैट Qg इंटू AL इज इक्वल टू HA Ts माइनस T इनफिनिटी 1। दिस इज हाउ यू कैन रिलेट द Ts temperature and T infinity 1 temperature if heat generation is known to you। Of course AA आपके पास कैंसिल हो जाएंगे and then you have the relation। Also अगर आप कहते हो नहीं सर मैं पूरा वॉल्यूम लूंगा, what is the पूरा वॉल्यूम? A into 2L। So you can also write that Qg into A into 2L, but in that case you have to consider that heat transfer in this direction also। Ultimately same equation आएगी, 2H1 into A Ts minus T infinity 1। बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। देखो, when there is a question on solid slab, when heat generation is taking place and convection is also taking place, then ask yourself that what question is asking। if question is asking to relate Tmax and Ts, then you can't use, what is the advantage of using this? भाई obvious सी चीज, अगर क्वेश्चन में Tmax और Ts की बात हो रही है, question is not asking anything about this, then what is the advantage of using this equation? Nothing। then you have to go for this, right, within the solid। but suppose if the question is asking to relate T infinity 1 and Ts, then you have to go for that। suppose if the question is asking about Tmax and T infinity 1, then क्या करोगे? first of all आप ये इक्वेशन यूज करके क्या पता लगाओगे? Ts, और फिर Ts का वो इक्वेशन यूज करके क्या पता लगाओगे? T infinity 1। डोंट डू दिस, ये बड़ा बड़ा लिख के काट लेना, ये गलती होती है जो बच्चे करते हैं, जितनी बार हो जाए इसको काट देना। This is not valid here because here heat conduction is also taking place। समझ आ गया? तो जो फंडा मैंने आपको बताया था, मैं हर जगह वो फंडा सेम यूज कर रहा हूं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे रिलेट करना था, दैट आई कांट राइट द रेजिस्टेंस टू बी L by Ka इफ हीट जनरेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इनसाइड द सॉलिड स्लैब। ये गलती होती है बिकॉज वी हैव लर्न्ड दैट फॉर अ सॉलिड स्लैब रेजिस्टेंस इज L by Ka। अब उसमें जब हीट जनरेशन हो रही है तो भी आप L by K लिख दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हीट जनरेशन के केस में आपको याद होगा, व्हेन आई मेड दैट टेबल नहीं बनाया था, व्हेन आई कंपाइल्ड ऑल दीज इक्वेशंस एंड ऑल दीज केसेस, मैंने हीट जनरेशन के केस में रेजिस्टेंस नहीं लिखा था, राइट। आई कांट राइट इन दैट फॉर्म, ओके। सो ये भी एक तरीका है। Of course, at steady state, if this situation is not maintained, then how you are going to have a steady state in this case? Correct? So, इसको आप note कर लो. One more case let me discuss. That is the case of a cylinder. See, what happened that most of the time आपके पास केमिकल में, मैकेनिकल में, दोनों में क्वेश्चंस आए हुए हैं फॉर इलेक्ट्रिकल वायर विच इज कैरिंग अ करंट और फॉर न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स विच इज कन्वर्टिंग न्यूक्लियर एनर्जी टू हीट एनर्जी. सो ये जो फ्यूल रॉड होते हैं या इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन किया होगा, वी हैव टू कंसिडर देम टू बी सिलिंड्रिकल. इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कंसिडर्ड टू बी सिलिंड्रिकल. सिमिलरली nuclear fuel rods are considered to be cylindrical and they are considered as solid cylinders, not hollow cylinders. वायर के अंदर होल होता है क्या? सॉलिड वायर के अंदर नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंसुलेशन. अब इंसुलेशन का फंडा अलग है, आएंगे इंसुलेशन पे भी आएंगे, ठीक है, वो टोटली दैट इज टोटली एन डिफरेंट टॉपिक, ठीक है, बट फंडामेंटल तो यही है, राइट.
तो सपोज देर इज अ करंट कैरिंग वायर और न्यूक्लियर फ्यूल रॉड एंड बोथ ऑफ देम कैन बी कंसिडर्ड एज सिलिंड्रिकल बॉडी. ओके, देखिए, सपोज देर इज करंट कैरिंग वायर. ओके, because most of the time we have these two cases only. Okay, it can be a reaction also, some nuclear reaction भी reaction ही है ना, nuclear fuel rod है ना. Both are solid cylinders. Solid cylinders. Now suppose we have a solid cylinder. Okay, you can say that this is a solid cylinder. Solid है तो थोड़ा सा इसको 3D sort of diagram बना के कोशिश करेंगे समझाने की. Suppose this is a solid cylinder. Okay. Right, this is the solid cylinder. This is the axis of the cylinder. And again we have symmetrical conditions. Asymmetrical conditions में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि asymmetrical conditions में थोड़ा सा एक theoretically derive करना मुझे थोड़ा सा boring है, ज़्यादा mathematics है उसमें, तो उसको मैं numerical की help से आपको explain करूँगा, है ना. I'm going to take numericals, don't worry. Suppose now this heat generation is taking place at a uniform rate, which is Qg like before, and surface is maintained at a uniform temperature on the both side. जब भी ऐसा होगा कि entire surface is present at the same temperature, there will be symmetry inside the body. Outside the this, there is T infinity, right? There is T infinity. Fine. There is T infinity. Medium is H. Medium is H. Correct. Then of course maximum temperature will be existing here. T max will be at this, this. Axis, the center line. This is capital R, and you have the length is equal to L. बना लो पहले, ठीक है. This is a cylinder with the heat generation. What is the volumetric rate of heat generation? Qg. Qg और Eg में यार अब तो मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है. Now again the same thing, that in this case also when you are talking about within the body, don't write the resistance as log of R2 by R1. वैसे भी R1 यहाँ पे क्या, R1 वैसे ही कुछ नहीं है, ठीक है. This is just a simple cylinder. This is a single solid cylinder, nothing else. No insulation is there. अभी insulation की बात नहीं कर रहा. This is just a solid body. Fine. The surface temperature is maintained at Ts. Correct. Now let's see. First of all, within the body. विद इन द बॉडी, इसके बारे में तो पढ़ चुके हम लोग. विद इन द बॉडी मैं इसमें इंसुलेशन का भी केस ले सकता हूं, बट अभी इसको करेंगे, अभी कंपोजिट सिलेंडर लेते हैं फिर उसमें करते हैं, ठीक है ना. विद इन द बॉडी व्हाट वी कैन राइट, आई होप you remember this equation that T minus Ts is equal to Qg into R square divided by 4. If I'm making any mistake here, तो आप करेक्ट कर लेना उसको. I don't think it is. Qg के साथ में तो Qg रहेगा, हाँ R square रहेगा, don't worry. Qg is fine. Then it was 1 minus, देखो ये याद रखना भी आसान था ना, Qg L square by 2k, Qg R square by 4k, Qg R square by 6k for sphere. Okay, with heat generation. 1 minus R square by capital R square. And also T max minus Tx, इसको डिराइव करने का मैंने एक और तरीका बताया था, वो भी यूज कर सकते हैं. Energy generation is equal to energy leaving. Fine. Within the body, only these two equations has to be applied. Outside the body, what is happening outside the body? Outside the body, there is medium and heat is being lost by convection. Outside the body, what I can write? Outside the body, where heat generation is not taking place. अगर heat generation taking place नहीं हो रहा, then I can simply use the convection formula that whatever heat is being generated in this volume, right? अच्छा, अब एक चीज समझो, यहां पे एक डिफरेंस और है. सपोज व्हेन यू आर डीलिंग विथ रेक्टेंगुलर वॉल, you take half of the wall and calculate that how much energy is being generated in that half volume and then equate it to the convected energy. और उसमें आप एक साइड का ही एरिया लेते हो. अब यहाँ देख, सिलेंडर में कोई साइड तो नहीं होती. सिलेंडर में यू हैव टू टेक द इंटायर एरिया. इफ यू हैव टू टेक द इंटायर एरिया, यू हैव टू टेक द इंटायर वॉल्यूम. सो आउटसाइड द बॉडी, Qg multiplied by volume. What is the volume? I think pi r square L. Okay. This is the volume of this body and this much energy is being generated. This is energy generated per unit time. ये सीख गए तो ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही खत्म है आपके, ठीक है. एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट टाइम. नाउ what about this? After this must be equal to the energy convected. So H into 2 pi RL. This is surface area.
this is volume, right? 2 pi RL into Ts minus T infinity. फाइन. अब इन दोनों को आप रिलेट करते रहिए, इनसे जो इक्वेशन आपको बनानी है बनाइए. सो विद इन द बॉडी दिस इक्वेशन, आउटसाइड द बॉडी दिस इक्वेशन, इफ बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इज आर टेकिंग प्लेस. ये दो केसेस थे. स्फीयर में भी आप कर सकते हो. देखो अब स्फीयर का अलग से बताने की जरूरत नहीं है. ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर द इक्वेशंस इन स्फीयर, तो मैं अलग से नहीं लिखवा रहा. इफ यू वांट, आप रिवाइज करना चाहते हैं, आप दोबारा लिख लीजिए. ठीक है. सो दीज आर द इक्वेशंस व्हिच आर वैलिड विद इन द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी. आउटसाइड द बॉडी फंडा क्या लगाया मैंने, दैट आउटसाइड द बॉडी व्हाट इज हैपनिंग, whatever heat is being generated in that given volume, वो सारा का सारा कन्वेक्ट होके बाहर चला जा रहा है. क्योंकि अगर heat generated is not equal to heat leaving, in that case there will be problem, steady state cannot be achieved. ठीक है. So this was the case of simultaneous conduction and convection. I also explained that how to understand overall heat transfer coefficient. ठीक है. ये सारी चीजें क्वेश्चंस में यूज होंगी. अब क्या बाकी रह गया, अब बाकी रह गया इसमें कॉम्पोजिट बॉडीज. कंपोजिट बॉडीज में हर तरह की आपके पास विद जनरेशन, विदाउट जनरेशन वहां पे भी हो सकती हैं. ठीक है. हाउ टू ट्रीट कंपोजिट बॉडीज वो मैं आपको बता देता हूं. लिख लो. छोटा सा टॉपिक है, कोई इसमें नई चीज नहीं है. बिल्कुल जैसे पहले पढ़ा था वैसे ही चीजें चलेंगी. ठीक है. एंड मैं कंपोजिट बॉडीज में साथ में कन्वेक्शन भी डाल देता हूं. ठीक है. अलॉन्ग विथ दैट कंपोजिट बॉडी, सिर्फ कंपोजिट बॉडी लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में आप कन्वेक्शन भी रखो. राइट. सो साइमल्टेनियस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कंपोजिट बॉडीज पे क्वेश्चन आते हैं गेट में काफी, और जनरली दे आस्क यू टू कैलकुलेट द इंटरफेस टेम्परेचर. सो कंपोजिट बॉडीज, राइट, एंड बोथ आई विल कंसिडर बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. लिख लीजिए कंपोजिट बॉडीज. कंपोजिट बॉडी मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ मटीरियल इज यूज्ड, है ना. अगर सॉलिड है तो एक ही तरह का सॉलिड नहीं, अलग अलग वैरायटी के सॉलिड्स हैं, है ना. एंड देन दे आर हैविंग डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज, सम इज हाई, सम इज लो. ओके. सो सपोज केस 1 लेते हैं, है ना. वी हैव 3 different walls, 3 different walls of different thickness and different materials also. ठीक है. दिस इज मटीरियल A, दिस इज मटीरियल B, मटीरियल C. ठीक है. सो थर्मल कंडक्टिविटी इज Ka, Kb, Kc. करेक्ट. मीडियम मान लेते हैं T infinity 1, H1, दिस इज द मीडियम. मैं प्रोफाइल वगैरह सब कुछ बना दूंगा. ठीक है. एंड दिस इज T infinity 2, H2. देखो जब भी बॉडीज इस तरह से, सपोज आप इनकी लेंथ भी ले लो. ठीक है. क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेम. सो दिस इज L1 और LA. ठीक है. दिस इज LB. इन दिस डायरेक्शन हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड. ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ना. व्हेनेवर वी कनेक्ट the bodies like this side by side, then they are considered as resistances connected in series. ठीक है. These are considered as resistances connected in series. आपको पता है कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, then we generally we simply add them. Okay. So what is the profile here? Profile तो देखो ये पहले वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा flat in the bulk, then there will be drop in the film, then there will be linear profile. But because Ka is equal to K and Kb, Kc, all of them are not equal. और आपको ये पता है कि जो dt by dx होता है, the slope of t versus x is inversely proportional to K. If K is very low, then dt by dx will be very high, right? So you can have various values. Suppose this is almost horizontal, then this is very much steep, right? And then this is a little steeper. If you see these 3 cases, what you can predict, this dt by dx is very small, means Ka is highest, right? ये सारी बातें यहीं पे कवर हो जाएंगी. Then which one is in this order, which one is the next, because dt by dx is smaller than this. dt by dx is very large, means Kb is smallest. तो एक सॉलिड बॉडी में टेम्परेचर में जो ड्रॉप आ रहा है, दैट इज हाउ रिलेटेड विथ थर्मल कंडक्टिविटी. पहले देख चुके हो. इन अ सॉलिड बॉल व्हाट वाज द dt by dx वैल्यू, directly proportional to K. Now, if gradient is more, means K is less, right? If more gradient in the solid wall, gradient का मतलब होता है slope, कितना change आ रहा है. नेगेटिव पॉजिटिव में मत जाओ. ठीक है. If gradient is more, K is less. ये एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. What about this? There will be drop in the film, and after that it will be solid bodies. Okay. Now how to write at steady state? What you can write? Suppose these are the interface temperature, Ts1,
ओके, दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज TS2. क्या लिख सकते हो यार, सारी चीजें इसमें लिख सकते हो, कोई जनरेशन नहीं है, देयर इज नो हीट जनरेशन. ऑफ कोर्स व्हाट यू कैन राइट एट स्टडी स्टेट. एट स्टडी स्टेट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब भी देखो बॉडीज, जब भी रेजिस्टेंसेस कंबाइन में होंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कंपोजिट बॉडीज, ये केस और प्रीवियस केस एक ही जैसा है. दीज आर जस्ट सम एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस केसेस. भाई पहले भी एक सॉलिड वॉल थी और दो मीडियम थे, नाउ यू हैव 3 वॉल्स एंड 2 मीडियम्स. यू आर डूइंग नथिंग, you are just adding the resistances, right? Resistances are connected in series. So how to write at steady state, how to write Q? Q will be equal, whether you write in any terms, Q will be equal to T infinity 1 minus TS1. Now if I'm taking only this much driving force, I'll write 1 by H1A equal to TS2, high minus low रखना है हमेशा, T infinity 2 1 by H2A, कोई दिक्कत नहीं है, equal to T infinity 1 माइनस TS2. आपको जितने कॉम्बिनेशन बनाने हैं बनाते रहो, बट ध्यान रहे अगर यहां तक के टेम्परेचर लिए तो उसमें ये वाला रेजिस्टेंस मत ऐड कर देना, है ना. इट विल बी 1 बाय, दिस इज 2 राइट, 1 बाय H1A प्लस LA बाय KA इंटू A प्लस LB बाय KB इंटू B, नहीं सॉरी KB इंटू A, सॉरी, प्लस ये LC होगा, है ना, LC बाय KC इंटू A बन गया. ठीक है, और क्या लिख सकते हो, ये भी लिख लो, इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू, इफ यू आर टेकिंग ऑल दीज टेम्परेचर्स देन सारे रेजिस्टेंसेस लिखने पड़ेंगे. मैं लिख दे रहा हूं फटाफट, है ना, 1 बाय H1A प्लस दिस LA बाय KAA प्लस LB बाय KBA प्लस LC बाय KCA प्लस 1 बाय H2A. लिखते चलो बस जितने. द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज आपने जो टेम्परेचर्स लिए हैं, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस लिया, वो कौन कौन से पॉइंट का लिया है. इफ यू आर टेकिंग द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन सपोज ओनली दिस पॉइंट T1 एंड T2, देन ओनली टेक दिस रेजिस्टेंस. सो ऑल द Q विल बी इक्वल. इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कंपोजिट में, दे गिव यू ऑल द वैल्यूज, दे आस्क यू टू कैलकुलेट दिस. हाँ, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं टू रिलेट KA KB KC ऑन द बेसिस ऑफ देयर, या फिर ऐसे चेंजेस आएंगे कि भाई आपने थिकनेस बढ़ा दी, व्हाट विल बी द लॉस इन Q और व्हाट विल बी द चेंज इन टेम्परेचर, लाइक दैट. ओके, सो दैट इज वन केस. और क्या हो सकता है कंपोजिट बॉडीज में, यू कैन हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन, यू कैन हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन लाइक दिस. ये क्वेश्चन गेट में आ रखे हैं, आपने किए होंगे वैसे भी, है ना. यू कैन हैव अ बॉडी A हियर, देन बॉडी B here, this is body C, and then you can have D. या DE भी हो सकता है, ठीक है, body D. Okay, so in this case also you can have T infinity 1 H1. ठीक है, suppose this entire the profile will be like this. Okay, this is TS1, this is T1, T2, TS2 and T infinity 2. लिखते रहो उस पर, है ना. sorry, ठीक है. द प्रोफाइल विल बी फ्रॉम TS2. ठीक है, मैं अंदर की प्रोफाइल्स नहीं बना रहा, नॉट इंपॉर्टेंट. देयर विल बी स्ट्रेट लाइंस ओनली. हियर यू कैन से दैट दिस रेजिस्टेंस and this equivalent resistance are connected in series. However, these two are connected in parallel. Just like जो आप parallel और series resistances के साथ जो करते हो वही यहाँ पे करना है. You can make the equivalent circuit like suppose this is T infinity 1. तो T infinity 1 के बाद एक रेजिस्टेंस, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, कंडक्शन रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस फॉर B, रेजिस्टेंस फॉर C, then resistance for D, and then again one more resistance is there. Now this is T infinity. अब लिख लोगे ना यार, इसको लिख के बताने की जरूरत है. आई एम राइटिंग द रेजिस्टेंसेस सेपरेटली. अब आपको जो जो लेना है लेते रहो इसमें, ठीक है. 1 by H1A, ठीक है, 1 by H1A. You may ask one thing, one question is there, I'll come to that point. Then there will be, suppose this is LA. So LA, this length is LA. LA by KA into A, right? Cross section area. What about B? In case of B, what area you will take, and in case of C, what area you will take? In case of B, it will be the length is same. तो आप तो ले लोगे LC यहाँ पे LC.
डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी ऑफ बी। देखो बी मटेरियल तो यहीं तक है ना, सो आई हैव टू टेक ओनली दिस मच एरिया, ये पूरा एरिया मत ले लेना वहां पे। व्हाट इज दिस मच एरिया? अब आप इसको कुछ नाम दे दो, आप इसको ए बी बोल लो, इसको ए सी बोल लो, ठीक है। ए बी प्लस ए सी इज ऑब्वियसली इक्वल टू ए, एंड सिमिलरली दिस विल बी एल सी, अच्छा एल बी इज इक्वल टू एल सी, राइट, लिख लेते हैं एल सी, कोई बात नहीं है ना, एंड दिस इज एल सी बाय के सी इंटू ए सी, correct? Now these two are connected in parallel. You know what we have to do in parallel आप resistances को पहले calculate कर लीजिए, and then what you do with the parallel resistance, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. तो जो concept आपने resistance में पढ़े same should be applied here. This should be LD divided by KD multiplied by area, same, and then it is 1 by H2A. अब आपको इनके resistances के साथ जो खेलना है खेलो, ठीक है। एंड ऑल्सो व्हाट आर द टेम्परेचर्स? TS1, करेक्ट, दिस वन इज TS1, देन वी हैव दिस इज T1, दिस इज T2, T3, नो TS2, सॉरी TS2, एंड देन T infinity 2। अब यहां पे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर दिस इज KB, करेक्ट, दिस इज KC, दिस इंटायर सरफेस इज T1, if conductivities are different then how this entire surface can be T2, because अगर conductivity different है तो एक का slope ऐसा होगा और एक का slope ऐसा आएगा, then this temperature and this temperature should be different. Logical question है, but there are two cases. See, either you can take different temperature and same Q, or you can take different Q and same temperature. Correct है? ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट स्टडी स्टेट, तो आप बोलोगे यार तुमने पढ़ा नहीं है क्या? व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द करंट थ्रू ईच ब्रांच इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस. सो करंट इज एनालोगस टू Q इन हीट ट्रांसफर. सो द हीट ट्रांसफर, द हीट फ्लक्स थ्रू दिस वॉल एंड द हीट फ्लक्स थ्रू दिस वॉल विल बी डिफरेंट, एंड दैट इज हाउ आई एम मेंटेनिंग सेम टेम्परेचर कंडीशंस. होता क्या है भाई, अगर देखो करंट, इफ द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम आई थिंक वो सेम होता है, हा? ऐसा ही पढ़ा है हमने, या अलग अलग होता है? क्या करते हैं? और जो करंट होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच इन अ पैरेलल सर्किट इज डिफरेंट. While current flowing through each branch in a series, resistance is connected in series, the current flowing is same. The same idea is applicable here. So if I ask you that what is the net resistance of this body, then how you are going to calculate? This plus this, convert this into the equivalent resistance, 1 by this plus 1 by this, ठीक है, is equal to 1 by R effective plus this is the total resistance. ठीक है, तो ये केस है आपके पास कंपोजिट वॉल विद कन्वेक्शन. अब इसमें और भी बहुत केसेस आएंगे, करते हैं उसको भी. यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अगर आपको चाहिए तो मैं इसमें बता देता हूं हाउ टू राइट. मैं इनको रेजिस्टेंसेस, नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछे कि कितना होगा, दैट इज 1 by H1A प्लस LA बाय K इंटू A. ठीक है, अब इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 by R is equal to 1 by R1. ऐसा ही फॉर्मूला था. 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So I can say that 1 by R1 plus 1 by R2, this will be R1 R2, तो प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट बाय सम. So product of the resistances by sum of resistances. So what is product of resistances? LC square by KB KC into AB AC. LC square by KB KC into AB AC divided by sum of resistances. So LC by KB, बड़ा एक्सप्रेशन बन गया पर आपको मतलब समझ आ गया होगा. LC by KB AB प्लस LC by KC AC. ठीक है, कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके आपको इसके साथ जो करना है करो. ठीक है, एलसीएम लेके जो भी हो सकता है कर सकते हो. देन एडिंग LD by KA प्लस LD by KD into A प्लस 1 by H2 into A. दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस फॉर दिस एंटायर कॉम्बिनेशन. ठीक है, यहां पे बस एक डाउट जो आपको रहता है वो मैंने अभी क्लियर किया, दैट इवन इफ द कंडक्टिविटीज आर डिफरेंट द टेम्परेचर्स विल बी सेम.
because I can maintain different flux through the walls connected in parallel, just like electrical circuits. Everything is equivalent to electrical circuit. अब आप बोलोगे सर ऐसे लिख के बताओ, इसमें भी लिख लेना यार, जितना करना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पता है आपको. Now depending upon which terminal, suppose you are considering T infinity 1 minus T2 as the driving force, so divided by this resistance, this equivalent resistance, ये जो आएगा, ये this equivalent resistance plus this resistance. Okay, T2. Okay, no, this is not required. ठीक है. So depending upon up to what point we are considering the temperatures, we can consider the resistance. This is about the composite body. And at steady state, heat flux through the entire body is same. अब आप बोलोगे सर, right now you told that heat flux here and heat flux here is different. The heat flux here and heat flux here, they can be added to get the same heat flux as passing through this wall. Everything is like resistance. ऐसा करते नहीं कि current in two branches can be added and then they can be considered as a single branch. Right? Same thing. बिल्कुल electrical analogy है. ठीक है. Now let us talk about composite cylinders, which is a very interesting and common case, because composite cylinder आपको हर जगह मिलेंगे. क्यों? Because most of the wires are insulated. अब insulation है तो एक तो body खुद हो गई और उसके ऊपर की insulations हो गई. So a composite cylinder is quite common. जबकि ये चीजें जो है ये बस थ्योरी के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए, ये आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में बहुत कम मिलेगा. दैट देयर इज कॉम्पोजिट वॉल, है ना. होता है कभी कभी फर्नेस में, बट फर्नेस भी आप देखोगे दे आर जनरली सिलेंड्रिकल, राइट. सो इसलिए कंपोजिट वॉल रियल लाइफ में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये केसेस हम इनकाउंटर नहीं करते हैं, बट यस कंपोजिट सिलेंडर्स इज देयर, राइट. तो बढ़ते आगे, ये आप देख रहे हो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है ना, बट ये जो छोटी छोटी चीजें क्लियर करता जानू, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, composite cylinder. In composite cylinder also you can have convection. Composite cylinder. खुद से सोचो क्या होगा, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है. सपोज दैट यू हैव अ सिलेंडर, पहले तो होलो सिलेंडर ले लेते हैं. एक तो होलो सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के ऊपर दिस इज अ होलो सिलेंडर. Correct? What is inside the hollow cylinder? It is possible that inside the hollow cylinder there is a fluid, hot water. Steam pipes होते हैं. अभी मैं वायर की बात नहीं कर रहा, बिकॉज वायर तो सॉलिड होती हैं. अगर होलो सॉलिड्स की बात कर रहा है, अगर मैं होलो सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं यहाँ पे, है ना. इनसाइड द होलो सिलेंडर व्हाट कैन बी देयर? देयर कैन बी कोल्ड वाटर, देयर कैन बी हॉट स्टीम. इन एनी केस हीट ट्रांसफर, रिड्यूसिंग द हीट ट्रांसफर इज क्रूशियल. भाई अगर आप पाइप में कोल्ड वाटर कैरी कर रहे हो, सपोज कोल्ड वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप, डू यू वांट द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू बी चेंज्ड? ऑफ कोर्स नॉट. इफ हॉट स्टीम is flowing through a pipe, you don't want that temperature to change, because that hot steam has to be used somewhere. Okay, so suppose this is a hollow cylinder, this is your points, है ना. Then you can start marking this radius R1. This is दिख रहा होगा आपको, I guess this is R2, and thereafter you have some layer of some other solid, not necessarily metal, can be some plastic, can be anything. You have this, ये सारे concentric है ना. So for these entire bodies the center is same, है ना. For these entire bodies the center is same. ठीक है, एक और लगा देते हैं, है ना. Composite cylinder. In composite cylinder the length of the cylinders is taken as same. हाँ, अगर आप सेम नहीं लोगे तो क्या होगा? इट विल बी ट्रीटेड एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. दिस इज ऑल्सो अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, तो दिस इज लाइक अ सीरीज कॉम्बिनेशन. दिस इज R3 एंड दिस इज R4, राइट. दिस इज R4. फाइन. यू कैन हैव मीडियम आउटसाइड एंड ऑफ कोर्स इनसाइड ऑल्सो. आउटसाइड द मीडियम इज T infinity 2, right, and having heat transfer coefficient H2. inside the medium is T infinity 1 having heat transfer coefficient H1. अब ये मैं यहां नहीं लिख सकता, तो आप लिख लेना inner fluid is at a temperature T infinity 1 which is more than T infinity 2 and heat transfer coefficient H1,
right, which is more than H2 or less than H2 doesn't matter, but T infinity has to be more than T infinity 2 if the heat transfer has to be from inside to outside. तो ये केस है आपके पास. There are various the cylinder, all the cylinders are of same length L. अगर सेम लेंथ L नहीं होती है तो मुझे सिलेंडर के नीचे अगर मैं एक और सिलेंडर लगा रहा हूँ, that should be treated as a parallel resistances, right? Then the same treatment should be done. Now at steady state, what can be done? अब आपको मैं टेम्परेचर्स बता दूं. दिस इज द TS1 टेम्परेचर, दिस इज T infinity 1, TS1, T1, T2, TS2, right? This is TS2, then we have T infinity 2, this is T2, this is T1. आप थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेना है, डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया. ओके, ऑफ कोर्स आई कैन राइट दिस इक्वेशन एट स्टडी स्टेट. एट स्टडी स्टेट व्हाट यू कैन राइट, दैट T infinity 1 माइनस T infinity 2. ध्यान रखना यहां भी कहीं जनरेशन नहीं हो रही. अगर जनरेशन होने लग गई यहां पे, देन यू विल बी इन प्रॉब्लम. द बॉडी जहां पे जनरेशन हो रही है उस बॉडी के लिए ये चीजें नहीं लिख सकते. ये चीजें तभी लिख सकते हैं व्हेन हीट इज ओनली बीइंग कंडक्टेड, नो जनरेशन. बिकॉज इफ यू रिमेंबर, व्हाटएवर वी हैव डिराइव्ड is only applicable when there was no generation. So these results are only valid if there is no generation, only heat is being conducted. तो आप देख रहे हो यहां पे क्या हो रहा है, only this is hot body, this is cold body and the heat is being conducted. So I can write these delta T and by resistances. What is the resistance? सबसे पहले मीडियम अंदर इनर फ्लूइड का मीडियम रेजिस्टेंस H1 by this is A1. अब यहां एरिया भी चेंज होगा, so it is important. H1 by A1 plus, now see this solid, so log of R2 by R1 divided by, ये कौन सा सॉलिड मान है, इसको K1 मान ले भाई. ये सरफेस T1 है, इसको K1 मान लेते हैं, इसको K2 मान लेते हैं, इसको K3 मान. भाई कितने सॉलिड्स हैं यहाँ पे, 3 है, 4 मत समझना, ठीक है. बाई 2 पाई log of R2 by R1 by 2 पाई K1 into L, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. सो log of R3 by R2, अब इसको कंसिडर नहीं करना है. अब दिस इज अ होलो सिलेंडर, सो log of R3 by R2 प्लस log of R3 by R2 by 2 pi K2L. This is the second body, the blue colored body. Yeah, blue colored body because R3. Okay. Third one, log of R4 by R3. बिल्कुल वैसे ही चलते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है. प्लस 2 pi K3 into L plus 1 by H1. Where is H1? 1 by H1. What about area? A4 और A3 जो भी है, मतलब दिस इज A1, A2, A3, A4, ठीक है. दैट इज द टोटल रेजिस्टेंसेस, ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन राइट. ऑफ कोर्स इफ यू आर कंसिडरिंग ओनली दिस टेम्परेचर डिफरेंस T infinity and T1, T infinity and TS1, in that case only one resistance will be there. T infinity and T1, in that case 2 resistances will be there. T infinity and T2, in that case 3 resistances will be there. T infinity 1 and S2, in that case 4 resistances will be there, and T infinity 1 and T infinity 2, in that case 5 resistances will be there. It totally depends कि आप composite body में, और हाँ again heat at steady state, heat through this heat rate की बात कर रहा हूँ, flux मत equate कर देना. In plane wall you can equate flux also because area is constant, because here area is not constant. तो steady state पे flux constant होगा कि नहीं होगा, that totally depends upon what kind of geometry is. But at steady state rate will be constant with the location because we have derived this. Correct? This is the composite cylinder. Again मैं sphere का नहीं बताऊंगा, क्यों भाई, कर सकते हो खुद से, उसमें sphere में बताने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है. Right. Now one more case. Let's take composite cylinder with heat generation. मतलब heat generation भी है और composite भी है. आप कंपोजिट वॉल विद हीट जनरेशन भी ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. तो कंपोजिट सिलेंडर लेते हैं और उसमें हीट जनरेशन भी करते हैं, देखते हैं क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते. क्या नहीं लिख सकते इज मोर इंपॉर्टेंट. ओके, सो कंपोजिट सिलेंडर, दैट इज द फोर्थ केस विद हीट जनरेशन. लिखते रहिए. एक बार आप ये कंपोजिट सिलेंडर विद हीट जनरेशन समझ गए, देन वी कैन टॉक अबाउट द क्रिटिकल थिकनेस एंड ऑल दोस थिंग. ओके, फोर्थ कंपोजिट सिलेंडर विद हीट जनरेशन. विद हीट जनरेशन, तो ये केस हमारे पास कई बार आता है. सपोज आई हैव दिस करंट कैरिंग वायर विच इज ऑल्सो हैविंग एन इंसुलेशन. सो कंपोजिट सिलेंडर मतलब सपोज दिस इज अ वायर, सॉलिड वायर. आपको बताया था हीट जनरेशन के केस में जनरली वी हैव सॉलिड बॉडी.
solid wire or nuclear fuel rod, anything can be there. And this is axis, correct? What is the radius? R. What is the length? L. ठीक है, लेंथ L हो गया, रेडियस R हो गया, करेक्ट? इसमें हीट जनरेशन भी हो रहा है एंड आई हैव ऑल्सो इंसुलेशन, एक इंसुलेशन लेता है फॉर सिंप्लिसिटी, आई ऑल्सो हैव एन इंसुलेशन, ठीक है? नॉट वेरी गुड विथ दिस 3D डायग्राम्स, लेट मी टेक एन इंसुलेशन, ठीक है? ऑफ कोर्स ये यहां बनाने का मतलब नहीं है, ऐसा ही होता है शायद, है ना? दिस इज योर इंसुलेशन। एक चीज ध्यान रखना कि सारे डिस्टेंसेस एक्सिस से मेजर किए जाते हैं, ठीक है? तो वो चीज आपको भूलनी नहीं है, ठीक है? वी हैव इंसुलेशन एज वेल, सो आई कैन से दैट इफ दिस इज R, दिस इज कैपिटल R, दिस डिस्टेंस इज R, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? R प्लस इंसुलेशन थिकनेस। देखो, थिकनेस इज दिस, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज दिस, रेडियस ऑफ इंसुलेशन इज दिस, टोटल डायमीटर इज दिस, करेक्ट? तो जब रेडियस ऑफ इंसुलेशन बोले तो दिस इज द रेडियस ऑफ इंसुलेशन, जब थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बोले तो ये। क्या क्वेश्चन में थिकनेस का मतलब रेडियस होता है? नहीं। क्या रेडियस का मतलब थिकनेस होता है? नहीं। रेडियस मतलब रेडियस, थिकनेस मतलब थिकनेस, ठीक है? सो इफ द क्वेश्चन सेज थिकनेस, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द आउटर रेडियस माइनस R, right? If the question says radius, then they are talking about the distance from the axis, correct? So in this case, now you tell me that we have an insulation. क्या इंसुलेशन के अंदर एनर्जी जनरेशन हो रहा है क्या? नो, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, दिस इज अ सॉलिड. एनर्जी जनरेशन इज ओनली टेकिंग प्लेस इन द वायर, नॉट इन द इंसुलेशन, राइट? राइट डाउन एनर्जी एंड वाई एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड. अरे भाई कुछ पढ़ा है? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, P इज इक्वल टू VI, पढ़ा है? H इज द हीट, I स्क्वायर RT, राइट? सो समझ लेना वहां से. वैसे करंट से केसेस, करंट से मिलता जुलता ऐसा फॉर्मूले वाला क्वेश्चन कभी गेट में नहीं आया है, बट इतनी तैयारी हमें होनी चाहिए कि इन केस दे गिव यू दैट दिस मच एम्पियर्स ऑफ करंट इज फ्लोइंग फॉर दिस पोटेंशियल डिफरेंस, आप वहां से पावर कैलकुलेट कर सकते हो. इतना फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए. बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप सभी ने पढ़ी है. P इज इक्वल टू VI, राइट? V इज इक्वल टू IR, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. सो दीज थिंग्स इतना आना चाहिए, ठीक है? सो एनर्जी इज जनरेटेड, हीट इज जनरेटेड लिखते हैं. एनर्जी अच्छा नहीं लगेगा जनरेटेड लिखने में, हर जगह बोलते हैं एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड. सो हीट इज जनरेटेड ओनली इन द सॉलिड वायर, ओनली इन द सॉलिड वायर, नॉट इन द इंसुलेशन. तो ध्यान से सुनना, नॉट इन द इंसुलेशन. सो अगर व्हाट इज हैपनिंग इन द इंसुलेशन, ओनली हीट कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस. In the insulation, only heat conduction is taking place. Only heat conduction. And outside the insulation, convection is taking place. Only heat conduction is taking place. ठीक है? अब देखो कैसे लिखेंगे इसको. Suppose if I talk about the wire, for wire, क्या वायर के लिए आप ऐसा लिख सकते हो? For wire, suppose this temperature is Tmax. यहां पे टेम्परेचर कितना रहता था? Tmax. ये टेम्परेचर क्या है? TS कह लो, TI कह लो, इंटरफेस जो भी कहना है, TI कह लीजिए, चलिए इंटरफेस, राइट? इसको कह लेते हैं TS. ये ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान से. हाँ, एंड दिस इज T infinity. आउटसाइड T infinity, उधर भी T infinity. देन व्हाट कैन राइट? फॉर वायर कैन यू राइट Tmax माइनस TI डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ R बाई, कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या? नहीं लिखना है. ये वायर के लिए क्या करना है? दिट इज द सिलिंड्रिकल बॉडी हैविंग दिस हीट जनरेशन. सो आई विल राइट Tmax माइनस TI इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? QG इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4K. ये था ना फॉर्मूला. व्हाट इज K? K इज द K ऑफ वायर, ध्यान रहे. एंड व्हाट इज R? ठीक है, ये इतने बॉडी के लिए लिखूंगा, because inside this body generation is taking place. But if you talk about insulation में heat generation हो रहा है क्या? नहीं. In the insulation only conduction is taking place. So what I can write for insulation? For insulation can I write this? अच्छा, फिर से बता रहा हूं, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि Tmax minus TS divided by sum of resistances? No, you can't do that because यहाँ पे generation हो रही है. But can you write Ti minus TS? Yes. For insulation you can write Ti minus TS is the driving force and log of ये outer radius क्या मान ले? कुछ मान लेते हैं, है ना? log of, आइए इसको यहां लिखते हैं. For insulation
ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, इसलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूं। फॉर इंसुलेशन, अभी इंसुलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फॉर इंसुलेशन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस मच पार्ट। हाँ, दिस इज आउटर रेडियस, इसको क्या नाम दूं यार, ले लो R2 लिख लो, कैपिटल R2। फॉर इंसुलेशन द फॉर्मूला इज TI माइनस TS Q is equal to TI minus TS, correct? Yes, and by difference log of outer radius by radius of the wire divided by 2 pi। ये किसका K होगा? ये इंसुलेशन का K होगा। ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, फॉर मीडियम और क्या लिख सकते हैं? फॉर मीडियम मतलब आउटसाइड कन्वेक्शन इज टेकिंग प्लेस, कैन आई राइट TI माइनस T infinity बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस? यस, बिल्कुल, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन, जो कि ये हो जाएगा, है ना, प्लस 1 बाय प्लस रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, आई कैन ऑल्सो राइट दैट दिस Q इज इक्वल टू HA इंटू TS माइनस T infinity। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू H इंटू A, विच A? आउटर रेडियस इंटू TS माइनस T infinity। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। जो Q यहां आएगा वहीं Q बाहर जाएगा, ठीक है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट T मैक्स माइनस T infinity डिवाइडेड बाय R कंडक्शन ऑफ द इंसुलेशन, मतलब R ऑफ इंसुलेशन प्लस R ऑफ कन्वेक्शन प्लस R ऑफ वायर, ऐसा लिख सकता हूं? R ऑफ वायर तो मैंने डिफाइन ही नहीं करी है, क्योंकि वायर में तो हीट जनरेशन हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। क्या गलत है? इसको बीच में लाने का ही नहीं, या जहां जनरेशन हो रही है उसको चुपचाप वहीं पे छोड़ दो। उसके लिए तो हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। अगर आप ये समझ गए तो आज की डेट में वो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे जो सिलेंडर बॉडी पे हीट जनरेशन में आए हुए हैं। इफ हीट जनरेशन इज टेकिंग प्लेस, डोंट डू दिस। ओके, वन मोर थिंग, हीट रेट इन हीट रेट बाय कन्वेक्शन, हीट रेट बाय कंडक्शन, दे आर सेम। बताया ना, हीट रेट बाय कन्वेक्शन, हीट रेट बाय कंडक्शन। अच्छा, इसके अंदर छेड़खानी नहीं करने का। इसके अंदर मैंने क्यों निकलवाया? क्या आपको निकलवाया नहीं? बिकॉज क्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। समझ आ रही है बात? दिस वाज कंपोजिट बॉडी, कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन, इंसुलेशन, हीट जनरेशन, सारी चीजें साथ में डाल के क्वेश्चन। देखो, इतनी चीजें पढ़ने के बाद अब आपको बताऊं क्वेश्चन आता है ये कि जब हीट जनरेशन हो रही है ये कैलकुलेट करो। अब वहां बंदा गलती क्या करता है? ये फॉर्मूला लगा देता है। वो क्या करता है? वो ये फॉर्मूला लगा, ये भी ठीक है, ये फॉर्मूला लगाता है T मैक्स माइनस TI डिवाइडेड बाय सम रेजिस्टेंसेस। ये R2 इसको ले लेता है, फिर R1 लेने जाता है तो वैसे ही फंस जाता है कि R1 क्या है। कई बार T मैक्स माइनस TI करेगा, R2 इतना ले लेगा और R1 इतना ले लेगा, सॉल्व करके आ जाएगा। पता ही नहीं है टेम्परेचर डिफरेंस कहीं का ले रहे हैं, रेडियस कहीं का ले रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स कहीं का ले रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हिच इक्वेशन व्हेन हीट जनरेशन इज टेकिंग प्लेस, डोंट राइट डेल्टा T बाय रेजिस्टेंसेस, ठीक है। दिस वाज अबाउट कंपोजिट बॉडी। मैंने दोनों केसेस में, कंपोजिट बॉडी के केस में भी और कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन के केस में भी स्फेरिकल बॉडी नहीं ली है। डजंट मैटर, ये थोड़ा सा आपके लिए भी है कि थोड़ा बना के देख लो कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। सो इस पे बेस्ड, सभी पे बेस्ड आपको गेट में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हम लोग लेंगे भी। बट बिफोर दैट दो चीजें और पढ़नी बाकी है कंडक्शन में। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन, तो वो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे।